جو فاطمہ سے رکھے مودت نہ اس کو دوزخ جلا سکے گا، جو فاطمہ سے رکھے مودت نہ اس کو دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا۔ خدا اس لعین پہ لعنت کرے جس نے دروازہ بطول کو آگ لگائی تھی۔ اب میں ملتمس ہوں خطیب سر اللہ ماشاءاللہ، سر راز کو کہتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے سر اللہ، یعنی اللہ کا راز۔ یہ اللہ کے راز کے خطیب ہیں، خطیب سر اللہ، سفیر ولایت سرکار امیر علیہ السلام، سرکار علامہ سید اون عباس نقوی شاہ صاحب، یہ معلم ہیں، حوزہ علمیہ صاحب الزمان ملتان، اور ان کے بعد سخی شبیر کے بہترین مصعب خان مداح، بابا سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری آفتر والی، اور ان کے بعد قاری القصائد سید الذاکرین بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب آپ پورے والا گجرات، شبیہ تابوت مسموم مدینہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی برآمدگی کروائیں گے۔ سرکار علامہ سید اون عباس نقوی شاہ صاحب آف ملتان، برسبت فرزند رسول خدا امام سبز قبا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بلند ترین صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب المعصومین، یا ہوا یا من لا یعلم ما کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا، وذو العزت والجبروت، الصلاۃ والسلام علی رسولک ہادی الامۃ وکاشف الغمۃ والمبعوث بالحجۃ القاہرہ وبالمحجۃ الظاہرہ الذی سمی فی السماوات احمد وفی الارضین محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء إلى وقت يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم،
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا سلوا. میں اپنے بیان سے پہلے چند دعائیں کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو بانیان کی حاجات ہیں صدقہ محمد و آل محمد کا پورا فرمائے. سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی ہے اور یقیناً عبادت کی مہر بھی لگ چکی ہے. جو منبر حسین پر حاضر ہوں میں آپ کے لیے نیا ہوں, آپ میرے لیے نئے ہیں, ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں ہیں, مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ علی والے جہاں بھی ہوں مزاج کلندرانہ ہوتا ہے. مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں. بس زیادہ دیر وقت بھی ایسا ہو چکا ہے, زحمت نہیں دوں گا, مگر اتنی دور سے حاضر ہوا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نام اس فہرست میں لکھواؤں جو ابھی عشاء کی نماز کے بعد امام زمانہ کے سامنے پیش ہوگی. بس وہی نام لکھوانے کے لیے حاضری لگوا رہا ہوں. اور میں اپنے بیان سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مذہب شیعہ والے اپنے بیان سے پہلے قرآن کی آیت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, جو ہاتھ اٹھے ہیں کسی کے محتاج نہ ہو. وقت ایسا ہے, سارے دن کی مجلس شروع ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں, میں نہیں کہوں گا بولے گا وہی جس کے دل کی دھڑکن میں علی کے عشق کی دھمک راج کرتی ہے. ہر بندہ بول بھی نہیں سکتا, بولنے کی خیرات بھی ادھر سے ملتی ہے اور یہ ذکر پڑھنے کی خیرات بھی ادھر سے ملتی ہے. اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو میں بات شروع کر دیتا ہوں. بغیر کسی تمہید کے پہلا تعارف ہے, میں آپ کے لیے نیا ہوں, ذکر پرانا ہے. ذکر وہی ہے جو 1400 سال سے چلا رہا ہے, کیونکہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا اور جو پرانا ہو جائے وہ قرآن نہیں ہوتا. اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو سورہ کہف سے ایک مشہور ترین آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم. میرے حبیب یہ جو اصحاب کہف ہے جن کے نام ہم نے غار پہ لکھ دیے تھے, لوگ کیا سمجھتے ہیں کانوا من آیاتنا عجبا, کیا یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے آیت کے لیے, سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کانوا من آیاتنا عجبا کہ یہ اصحاب کہف ہماری عجیب آیتوں میں سے ہے؟ اصحاب کہف جانتے ہیں غار والے, اللہ نے ان کو کہا کانوا من آیاتنا عجبا. بس یہ عجبا ہی میرا موضوع ہے. اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں, یہ اصحاب کہف ہماری عجیب آیتوں میں سے ہے. عجیب آیت کیوں ہے؟ اصحاب کہف, کہف کہتے ہیں غار کو, اصحاب کہتے ہیں غار میں رہنے والے کو. جو ہر وقت جس میں رہے اسے اصحاب کہف کہتے ہیں. اصحاب بننے کے لیے ضروری ہے ہر وقت ساتھ رہنا. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں. یا علی علی, یہ اصحاب کہف اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے یہ اس غار میں ہے جو لبنان اور شام کے بارڈر پر ہے. میں زیارت کر کے آیا ہوں, یہ اس میں رہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے, یعنی 2000 سال گزر چکے ہیں. یہ اصحاب کہف غار میں ہے اور اللہ نے ان کو اصحاب کہف یعنی غار کا ساتھی, غار کا اصحاب اس لیے کہا ہے کہ یہ ہر وقت 2000 سال سے اسی غار میں رہ رہے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک صحابی وہ
होता हो, वही सहाबी है जो कंधों पे भी सवार होता हो, जो घबरा गए हैं बेटा अभी देर है नारा बाद में लगाना। सहाबी वही जो हर वक्त साथ रहे, जो घबरा गए बात खोल देता हूँ। नबी सो रहा हो तो साथ हो, नबी खा रहा हो तो साथ हो, नबी नमाज में हो तो साथ हो, नबी घर में हो तो साथ हो, नबी बाहर हो तो साथ हो, नबी हजर में हो तो साथ हो, नबी सफर में हो तो साथ हो, नबी मेराज पे हो तो साथ हो। आप पता नहीं कहां बैठे हैं, नबी मेराज पे हो तो साथ हो। और मैं बताना तो यही चाहता हूं कि अल्लाह ने मोहम्मद के सहाबी बनाई ऐसे हैं, अगर मोहम्मद घर में थे तो सहाबी साथ, मोहम्मद चादर में थे तो सहाबी साथ, और मोहम्मद मेराज पे थे तब भी सहाबी साथ। असहाब कहते ही उन्हें हैं जो हर वक्त साथ हो। और लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई, अगर लोगों को सहाबी का फर्क समझ आता और समझ आता सहाबी सोहबत से है, सहाबी निकला है सोहबत से, सोहबत का मतलब है हर वक्त साथ रहना। और लोग इतनी सी बात नहीं समझ सके, अगर मतलब है सहाबी समझ में आ जाता फिर समझ जाते कि मोहम्मद के सहाबी अली और हसनैन जैसे हैं, गुलामों को सहाबी न बनाते। बाहर वाले गुलाम हैं मोहम्मद के, खून वाले असहाबे मोहम्मद हैं। अल्लाह कहते वो हमारी अजीब आयतों में से थे। ये तो मैं देख रहा था आप कितने पानी में हैं। अल्लाह कहते वो जो गार वाले असहाब हैं, असहाबे कहफ, वो हमारी अजीब आयतों में से है। अजीब आयत क्या है, बस ये अजीब 10 मिनट लूंगा इसी तशरीह में आयत की, फिर आपको अजीब का मजा आएगा। अजीब आयतों में से क्या आयत अजीब है कि 2000 साल गुजर गए हैं, जिंदा है। जो कुरान पढ़ते हैं 2000 साल तकरीबन गुजर गए हैं, गार में जिंदा है और सोए हुए हैं। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि हर 6 महीने के बाद हम उनकी करवट कभी दाएं बदल देते हैं, कभी बाएं बदल देते हैं। जिसने इल्म सुनना है मैं उससे बात कर रहा हूँ। कभी दाएं बदल देते हैं, कभी बाएं बदल देते हैं। अल्लाह कहता है मेरे अभी मैंने ड्यूटी लगाई है फरिश्तों की, वो कान पे थपकियां देते हैं ताकि सोते रहे, ताकि सोते रहे। अब अगली बात है जो आपके ईमान की मेराज है। और अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अगर तू जाकर देखे, वो हैं सोए हुए मगर आंखें खुली हुई है। मैं अजीब बात कर रहा हूं, जो बेदार है सोए हुए मगर आंखें खुली हुई है। छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला जो सोया हुआ हो उसकी आंखें बंद होती है। मौला ने फरमाया उन्होंने आना है हमारे कायम के जमाने में, सोए गार में है, कायम निकालेगा बैतुल्लाह की दीवार से, क्योंकि असहाबे कायम है। और जो कायम के इंतजार में हो, इंतजार करने वाला आंखें बंद नहीं किया करता। मौला सलामत रखे, इन हाथों को मौला किसी का मोहताज न करे। जो इंतजार में हो मौला सलामत रखे। या अली या अली या अली या अली, कोई बात नहीं, जितनी जिसकी ज़ुर्फ और औकात है उतना बोलेगा। मौला आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है, आपका इश्क है जिसने आपको फ्रेश किया है। इमाम ज़माना ने आकर, ये असहाबे काफ इमाम ज़माना के सहाबी हैं, फौजी हैं, लश्कर में फौज में होंगे। असहाबे काफ तादाद किसी ने नहीं बताई और कुरान ने भी नहीं बताई, अल्लाह ने भी कह दिया 6 हैं, 7वां कुत्ता है, 7 हैं, 8वां कुत्ता है। मैं थोड़ा सा एक लफ्ज में इनका तारफ करा दूं फिर आता हूं अपनी तरफ। असहाबे कहफ निकले कहां से थे? दकियानूस बादशाह था ईसा से पहले, दकियानूस बादशाह के ये दाएं बाएं बैठते थे, वजीर थे, दाएं बैठते थे, कुछ बाएं बैठते थे, और ये उसको वजारत के सारे अमूर यही संभालते थे। एक दिन उसने दकियानूस ने कह दिया कि मैं रब्बे आला हूं, मैं रब्बे आला हूं। ये दकियानूस ने कहा। इन 6 ने आपस में या 7 ने मीटिंग की कि ये रब कैसे हो सकता है? कल तो हमने इसे कहा था कि तेरी सल्तनत पे एक लश्कर हमला करने वाला है, ये डर गया था। जो डर जाए वो अल्लाह कैसे हो सकता है? पता नहीं आप कहां बैठे हैं। जो डर जाए वो अल्लाह कैसे हो सकता है? इसे कल कहा था फौज लश्कर हमला करने वाला है, ये डर गया था। मौला सलामत
रखे, ये अल्लाह नहीं हो सकता। तौहीद उस वक्त हिजाबात में थी, मगर इन्होंने जब ये बात की तो अल्लाह ने भी हिदायत की। ये बात कह के दरबार से निकल आए, रात के वक्त छुप के बादशाह दकियानूस को छोड़ के निकल आए, घोड़ों पर सवार होकर निकले, सारी रात सफर करते रहे। सुबह तलू हो रही थी, देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, बकरियां। मैं करीब आ गया हूँ, अजीब आयते, बकरियां चरा रहा है। उसके पास आए, घोड़े से नीचे उतरे, कहा हम सारी रात का थके हुए हैं, कोई चीज है तो हमें खिला, कोई पीने की चीज है तो पिला। इसने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। देख कर कहते लिबास से तो लगता है तुम कोई बादशाह हो। उसने कहा थे, जो घबराए बैठे हैं उनसे कलाम ही नहीं है। कहा थे, अब एक ही बादशाह को मानते हैं। कहा मैं समझा नहीं। कहा पहले कुछ खिला पिला तो सही। वो चरवाहा बकरियां चलाने वाला दूध चोहा बकरियों का और ले आए और पेश किया। इन्होंने पिया, जब पी चुके तब उसने पूछा लगते बादशाह हो मगर सफर में हो, परेशान हो, वजह क्या है? उसने कहा हमने एक बादशाह के लिए कई बादशाह छोड़ दिए। जो बेदार हो सुनने की आदत है, मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, एक बेदार एक बादशाह के लिए बादशाह छोड़ दिए। क्या समझा नहीं? कहा वो दकियानूस नहीं है बादशाह, उसने ऐलान किया है मैं रब्बे आला हूँ, मैं अल्लाह हूँ, हमने उसे छोड़ दिया है। तू खुद बता, चाहे बकरियां चरवाता है, इतना तो पता है वो अल्लाह कैसे हो सकता है जो फौजों से डर जाए? वो अल्लाह कैसे हो चुका है? अब ये जो बात कर रहे थे वो बकरियां चराने वाले का एक कुत्ता था जो बकरियों की हिफाजत करता था, वो भी सुन रहा था। आए बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद। खैरियत अल्लाह तकमीर मौला सलामत है। क्या कहने की बस इरादा है या मैं सैयद को दे दूं? अब मेरे पीछे अब तो एक है, इतने बड़े सैयद का हाथ भी है। अब तो फिर मैं आपको खुल के सुनाऊंगा, घबरा तो नहीं गए हैं। बकरियों वाले को सुना रहे थे रब्बे आला की बात। कुत्ता भी कतमीर जिसका नाम है, कतमीर काफ दो नुक्तों वाला है, कतमीर सुन रहा था। चरवाहे ने कहा मैं बकरियां घर छोड़कर फिर वापस आऊंगा, फिर तुम्हारे साथ जाऊंगा। उन्होंने कहा इतना वक्त नहीं है, हम जा रहे हैं। ये उठकर चल पड़े, चरवाहा बकरियां लेकर इधर चल पड़ा, कुत्ता इनके पीछे। अब जो सुनने आया है बात और अब्बास उससे कर रहा है, कुत्ता इनके पीछे, चरवाहा इधर। कुत्ता चरवाहे का था, मगर जो बात चरवाहे को समझ ना आई वो कुत्ते को समझ आ गई। कुत्ता इनके पीछे पीछे। अब इन्होंने कुत्ते को भगाया, कहीं हमारा राज न खोल दे। जैसे भी भगाया, बट्टा मारा, कोई आवाज दी, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, ये फिर चल पड़े, ये चले, कुत्ता फिर पीछे। इन्होंने फिर कुत्ता भगाया, ये चले, कुत्ता फिर पीछे। तीसरी मर्तबा कुत्ते को भगाया। जब भगाने लगे तो अल्लाह ने कुत्ते को कुव्वत गोयाई दी और कुत्ता बोल के कहता है जिसे पहचान के तुम जा रहे हो मैंने भी पहचान लिया है। हाय हाय हाय, ये हाथ सलामत रहे जो बुलंद हुए। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, जिसे पहचान के तुम जा रहे हो। जिसे पहचान के तुम जा रहे हो, बात के करीब आ गया, मैंने भी उसे पहचान लिया। अब अल्लाह की मर्जी है जिसे हिदायत दे। हिदायत कौन देता है? कुरान कह रहा है हिदायत अल्लाह देता है। अब अल्लाह की मर्जी है कुत्ते को दे या बंदे को। लेकिन एक जुमला कहने का हक तो मैं रखता हूँ, पता नहीं उस कुत्ते में क्या कमाल था कि अल्लाह हिदायत देने पर आए तो कुत्ते को भी दे देता है, और न देने पर आए तो दुश्मन अली को नहीं देता। अल्लाह की मर्जी है, जिसे हिदायत दे दे। मौला इन हाथों को सलामत रखे। कुत्ता पीछे, कुत्ता पीछे। गार के दरवाजे पर पहुंचे, जो मैंने आयत पढ़ी है। कुत्ता भी अभी तक जिंदा है, अभी तक जिंदा है, जिंदा मरा नहीं। यही तो कानून में आयात ना अजब है, अजीब आयत ही यही है। गार के दरवाजे पर कुत्ता यूं बैठा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ है, खुदा की कसम बैठा हुआ है।
मैं देख के आया हूं तो बता रहा हूं, इस तरह बैठा हुआ है, यूं हाथ फैला कर बैठा है जैसे नौकर मालिक के हिफाजत के लिए बैठा हो, और कुत्ता इस तरह बैठा हुआ था। तकियानूस के सिपाही आए, ढूंढते ढूंढते गार के दरवाजे पर पहुंच गए। अब कुत्ते की फितरत है भौंकना, फितरत है भौंकना, बगैर भौंके रहा नहीं जाता कुत्ते से। कुत्ता जरूर भौंकता है, चाहे कुत्ता वो गार वाला हो या दुश्मन अली हो, कुत्ते की आदत है, भौंकता है। अब इसकी फितरत में अल्लाह ने रखा था भौंकना, मगर जब फौज आई गार के दरवाजे पर, खामोश, भौंका नहीं, खामोश नहीं भौंका। इन्होंने कहा कुत्ता यहाँ चुप करके बैठा है, कोई होता तो ये भौंकता। इसने अपने मालिक को बचाया दुश्मनों से, खामोश रहकर इसने अपनी फितरत को बदला। अल्लाह ने कहा मैंने तेरी जबिल्लत को बदल दिया, जहां साहबे कहफ जन्नत में जाएंगे तू भी जन्नत में जाएगा। तूने फितरत को बदला है, मैंने जबिल्लत को बदला है। मैंने जबिल्लत को बदला है। असहाबे कहफ भी जन्नत में जाएंगे। हमारे हर इमाम ने फरमाया है कि ये जो कुत्ता है, असहाबे कहफ का, घबराए ऐसे बैठे हैं जो कुत्ते की बात कर रहा है मजलिस में, बार बार कुत्ता कह रहा है। अल्लाह ने भी इसका 5 दफा नाम लिया कुरान में, कुरान में नाम लिया अल्लाह ने कुत्ते का। लिया भी इसलिए है कि ये कुत्ता समझ आए तो फिर कई कुत्तों को अली समझ में आए। हाय हाय हाय, आप कहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। ये कुत्ता समझो कितनी इज्जत है। मौला छठे इमाम ने फरमाया है कि ये कतमीर कुत्ता, इसका नाम है कतमीर, ये जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ भी जन्नत में जाएंगे। ये कुत्ता छठे इमाम ने फरमाया है, सादे के आले मोहम्मद ने फरमाया है, ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। अब नसीब है अली के दुश्मन के कि कुत्ता तो जन्नत में चला जाएगा, अली का दुश्मन नहीं जाएगा। ये नसीब है अली के दुश्मन के कि कुत्ता जन्नत में जाएगा। ये तारुफ था साहबे कहफ का। अल्लाह ने कहा कानू मिन आयातिन आजबा। इसी बात पे पढ़ता रहूं सारी रात गुजर जाएगी, मगर मैं मकसद की तरफ आ रहा हूं। घबराए तो नहीं है, ये जो भी कहा है मुझे कहा है, आपको यही कहा है कि सुनते रहे और मैं पढ़ता रहूं, घबरा तो नहीं गए। असहाबे कहफ का बात सारी रात करता रहूं, बहुत बड़ी है, मैंने खत्म करके करीब ले आया हूं, बहुत करीब ले आया हूं। इन्होंने नहीं कहा कि खत्म करो, वो कह रहे हैं 8 बजे तक पढ़ो, लेकिन आप ही नहीं चाह रहे। अच्छा, सुनने वालों की ये हालत है, पढ़वाने वालों की नहीं है। सुनने वाले ऐसे वाह वाह करेंगे तो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह नहीं पढ़ता मैं, मेरा मिजाज अपना है, ना मैं किसी को पढ़ता हूँ ना किसी की तरह पढ़ता हूँ, मेरा अपना मिजाज है। वाइस प्रिंसिपल हूँ जामिया साहिब जमान मुल्तान का, जो खैरात अली के दरवाजे से मिली है वही बांट रहा हूँ। ये असहाबे कहफ का तारुफ आपको करवाया है। मस्जिद नबवी में रसूल ने यही आयत पढ़ी, कुछ प्यारे प्यारे सहाबियों ने कहा या रसूल अल्लाह हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। रसूल ने फरमाया वो सबसे नहीं मिलते, जो बेदार हो मैंने मजलिस शुरू कर दी है, वो सबसे नहीं मिलते। इन्होंने जिद की नहीं हम देखना चाहते हैं। वो सहाबे कहफ कितने कमाल के हैं और कितनी बड़ी अजीब आयत है कि अल्लाह ने जिक्र कर दिया। रसूल ने कहा अच्छा अगर तुम्हारी जिद है, मिलना चाहते हो तो वो हर किसी से नहीं मिलते, तुम्हारे साथ कोई एक ऐसा भेजता हूँ जिससे वो भी मिलना चाहते हैं। मैंने आराम से कह दिया, आपने आराम से सुन लिया। एक ऐसा भेजता हूँ जिससे वो भी मिलना चाहते हैं। सलेमान जी कुल्ले ईमान के भी ईमान, बुलाओ अली इब्न अबी तालिब को, इनके साथ जाए। रसूल बाहर आए मस्जिद से, अली साथ आए। 10 सहाबा, किताब का नाम है अशरा मुबशरा, 10 सहाबा थे जो देखना चाहते थे असहाबे कहफ को। बाहर निकले, मस्जिद नबवी से बाहर आए। चलो आप नीचे हो गए, मैं भी नीचे होके बात करता हूँ। मस्जिद नबवी से बाहर आए, रसूलुल्लाह ने हाथ का इशारा किया, बादल को उतारा। या तो सुबह से कलमा ना पढ़ना रसूल का, अगर पढ़ते हो तो फिर
इशारा समझो। जो जमीन पे खड़े होकर इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, वो बादल भी बुला सकता है। रसूल ने इशारा किया, सफेद रहमत का बादल नीचे उतरा, उन 10 सहाबा से कहा कि बैठ जाओ। और ये 10 वही थे जो पहले थे, कहा बैठ जाओ बादल पर। जब ये 10 बादल पर बैठ गए, फिर रसूल ने इशारा किया, एक और बादल को नीचे उतारा और नीचे उतार के कहा, अली तुम अकेले इस बादल पे बैठ जाओ। और लाहौर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इस जुमले को 10 को अकेले बादल पे बिठाया, अली को अकेले बादल पे बिठाया। रसूल ने जमाने को समझाया, अगर अली इन जैसा होता तो इनके साथ बैठता, अगर अली इन जैसा होता। मौला सलामत रखे। अगर अली या अली थके तो नहीं है, चलूं या यहीं छोड़ दो? अगर इरादा है, मौला सलामत रखे, कम से कम जवान साथ रहे तो मेराज होगी। अब तो वहां आया हूं जहां मैं आपको लाना चाहता था। अली बैठे अकेले बादल पे, वो 10 सहाबी बैठे अकेले बादल पे, और उन सहाबियों में से एक सहाबी थे अंस बिन मालिक, जिसके जहन में मेरा मौजू मौजूद है। कानू मिन आयातना आजबा। 10 बैठे एक बादल पे, अली बैठा एक बादल पे। अब रसूल ने बुलाया था, उड़ाया नहीं, अली से कहा हुक्म दो। हाय हाय, अली से कहा हुक्म दो। अली ने हुक्म दिया, बादल ने परवाज की। रसूल ने अंस से कहा था, अंस बिन मालिक, जो बात दरवाजे गार पे हो तूने मिन्नोअन मुझे आकर बतानी है। जो बात हो, अंस बिन मालिक को कहा, मुझे मिन्नोअन आकर बतानी है। कहा ठीक है। पहुंच गए गार के दरवाजे पर, असहाबे कहफ की गार के दरवाजे पर पहुंचे। बादल उतरे, अली उतरे। अली ने कहा सलाम करने आए थे, करो सलाम। अब पहला सहाबी आगे बढ़ा, जिसे लोग कहते हैं आगे बढ़ा, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सहाबल काफ़े व रकीम। कोई जवाब नहीं आया, आना भी नहीं था। मैं लाहौर में पढ़ रहा हूं, आना भी नहीं था। दूसरा बढ़ा, जवाब नहीं आया। तीसरा बढ़ा, जवाब नहीं आया। चौथा बढ़ा, जवाब नहीं आया। 10 के 10 आगे बढ़े, अंदर से जवाब नहीं आया। 10वें नंबर पर, वो जो 10वें दर्जे पर ईमान के फाइज था, सलेमान आगे बढ़ा और इसने सलाम किया। अंदर से जवाब आया, सलेमान तू अल्लाह के नेक बंदों में से है, लेकिन हमने जवाब या वली को देना है या रसूल के वसी को देना है। मौला इन हाथों को सलामत रखे, हमने वली को देना है। दुआ है या अली, या अली। अब सारे साहबी हैरान होकर पीछे हटे, अली आगे बढ़े। अली ने कहा अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। अली वली है, जानता है। अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह व अहया व अहया, ऐ अल्लाह के औलिया और वो जो जब से जिंदा हो अभी तक जिंदा हो, मुझे अली का सलाम हो। ये कहना था, ये अंदर से आवाज आई, वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन या वसी रब्बिल आलमीन, अंत वजहुल्लाह व नूरुल्लाह व हिजाबुल्लाह। मौला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह अकबर। जल्दी बाबा जी, जल्दी जल्दी जल्दी। या अली, या अली, या अली सलामत रखे या अली कहने वालों को। और जो या अली नहीं कहता बहुत पछताएगा और नहीं जन्नत में जाएगा जब तक या अली नहीं कहेगा। अली को सलाम का जवाब दिया। जुमलों का जिम्मेदार मैं हूँ, लफ्जों का जिम्मेदार मैं हूँ, हरफों का जिम्मेदार मैं हूँ, किताब का जिम्मेदार मैं हूँ। आप सुनने के जिम्मेदार हैं, सुनकर ईमान को बुलंद करें। फिर अली ने बादल को बुलाया, सवार हुए, वापस आए। मस्जिद के दरवाजे पर रसूल अली के इंतजार में है, रसूल अली के इंतजार में है। और रसूल ने अली का इस्तकबाल किया, गले से लगाया। सब रसूल को हैरान होकर देख रहे थे। रसूल ने कहा मैंने तेरे जिम्मे लगाया था, जो गार के दरवाजे पर हो वो मुझे बताना। कहा या रसूल हम उतरे, सबने सलाम किया, उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने
مولا سلامت یا علی یا علی بابا جی ہن تسی نعرہ نہیں لانا او پچھلے لانا ہے انہاں چھٹی لئی ہوئی ہے مولا سلامت رکھے دیو پانی تھوڑا یا علی یا علی یا علی یا علی مولا صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے مولا ہم حیران ہیں کسی کو جواب نہیں دیا بابا ذاکر شاہ جی آپ کی دعا ہو اور میں چل پڑا ہوں بات بھی قریب آ گئی کسی کو جواب نہیں دیا علی کو جواب دیا پر میں تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ نے کہا کانو من آیاتنا عجبا وہ اللہ کی عجیب آیتوں میں سے ہے اور علی مظہر العجائب ہے علی مظہر العجائب ہے جو گھبرا گئے ہو تو دلیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں خیبر کا میدان 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہیں ہوا بھاگنا یہودیوں میں تھا بھاگ مسلمان رہے تھے 39ویں دن رسول نے مصلی بچھایا مصلی بچھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر پالنے والے 39 دن گزر گئے ہیں خیبر فتح نہیں ہو رہا میری مدد کر اللہ نے کہا میں نے جو مددگار بنایا ہے اسی کو بلا کہا پالنے والے کیا کروں کہا ناد علی کہا وہ مدینے میں ہے کہا مظہر اللہ جائے بلائے گا بلا وہ آئے گا گھبرا تو نہیں گئے اچھا جس کے سننے کا معیار ہی اتنا ہے اس نے سننا ہی کیا ہے جس کا معیار ہے میں اسی کے لیے معیار کی بات کر رہا ہوں علی کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے علی کمال توحید کا نام ہے اور پوری کائنات میں یہ ایک علی تو ہے جس کے اسم کی وجہ سے زمین قائم ہے اور جسم کی وجہ سے توحید قائم ہے علی کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے اسم سے زمین قائم ہے جسم سے توحید قائم ہے لوگ گھبرا گئے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا ناد علی اور یہ ناد علی پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا یہ ناد علی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اللہ کا کلام ہوتا ہے جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن معجزہ بن کر آئے تو قرآن ہے اور معجزہ بن کر نہ آئے تو حدیث قدسی ہے یہ ناد علی بھی حدیث قدسی ہے میری طرف دیکھو ناد علی بھی حدیث قدسی ہے یعنی اللہ کا کلام ہے محمد کے کہنے سے پہلے میں تو لاہور سمجھ کے پڑھ رہا ہوں محمد کے کہنے سے پہلے خود اللہ نے کہا ناد علی ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں علی والے خود محمد سے پہلے اللہ نے کہا ناد علی علی کو بلاؤ رسول نے کہا میرے اللہ وہ تو مدینے میں ہے اللہ نے کہا مظہر اللہ جائب علی عجائبات کا مظہر ہے تو بلا مدینے میں ہوگا تب بھی آئے گا عرش پہ ہوگا تب بھی آئے گا تو بلا علی آئے گا نعرہ معاف ہے سید بادشاہ کی باری لگا دینا تو بلا اب جب اللہ نے کہہ دیا بلا میں عجائب سنا رہا ہوں علی مظہر العجائب ہے علی مظہر العجائب ہے بلا اب رسول نے بلایا اپنے انداز سے آپ جانتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں بہت سنایا آپ نے بلایا بلانے کے بعد ایک اعلان کیا جب اللہ نے کہا نا علی آئے گا تو بلا جب رسول کو یقین ہو گیا اب رسول نے اعلان کیا جب علی کے آنے کا یقین ہو گیا اب رسول نے اعلان کیا لوگوں کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا جب مولا سلامت رکھے گا ہاتھوں کو مولا کسی کا محتاج نہ کرے جب یقین ہو گیا علی کا تب یہ اعلان کیا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جب یقین ہو گیا تب اعلان کیا کل میں مرد کو علم دوں گا کون سا مرد کرارن غیر فرارن جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا یہ غیر فرار اس لیے کہنا پڑا جو اب تک تھے وہ سارے ہی فرار تھے کہنا اسی لیے پڑا کہ اب کرار کو دوں گا اعلان کرنے کے بعد ایک اور اعلان کیا او میرے صحابیوں جو علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا وہ جو محمد
इतला देगा। मैं शायद मसाइब भी ना पढ़ूं, मैं चाहता हूं आपको इरफान की उस मंजिल पे ले जाऊं कि रात को बिस्तर पे सोए तो अली अली हो। मेरा दिल यही है, अब अली वाला ही दिल करेगा। जिसका अली से कोई वास्ता ही नहीं है उसका कोई रास्ता ही नहीं है, और जिसका रास्ता नहीं है और अली से वास्ता नहीं है उसका एक ही घर है जिसे जहन्नम कहते हैं। यहाँ भी जलेगा, वहां भी जलेगा, वहां अल्लाह जलाएगा, यहाँ मैं अली अली करके जलाऊंगा। उसने है ही जलना, उसके मुकद्दर में है ही जलना। रसूल ने कहा जो अली के आने की पहले इतला देगा। 4 घंटे बैठा हूं आपकी जियारत के लिए, कुछ तो देकर जाऊं। पता नहीं कौन नाराज होकर उठे और फिर न बुलाए, बुलाओ या न बुलाओ, रिस्क 12वें के हाथ में है, और ऐसे हाथ में रिस्क है जो अल्लाह का हाथ है और मिल रहा है। इससे बड़ी भी इस हाथ के कमाल की कोई बात होगी? जो मान रहा है उसे भी मिल रहा है, जो नहीं मान रहा उसे भी दे रहा है। रिस्क उसी के हाथ में है जो पहले अली की इतला देगा। बात नहीं हो तो फिर बोलना। अली मजहर लजायब है। अब सारे लोग मदीने की तरफ आंखें लगाकर देख रहे हैं कि अली आ रहा। बेदार हो या थक गए हो? अली आ रहा है, अली आ रहा है, ऐसे इस्तकबाल करोगे। मदीने की तरफ निगाहें हैं। एक 350 साल का बूढ़ा है, लोगों की निगाहों में बूढ़ा है, मगर विलायत अली ने उसे जवान रखा हुआ है। अपनी कमर को जोर देकर, कमर सीधी करके आसमान की तरफ देख रहा है। एक बंदे ने कंधा हिला के कहा सलेमान क्या देख रहा है? कहा अली का इंतजार कर रहा हूं। कहा अली ने मदीने से आना है। कहा बेवकूफ, तू आज तक अली को नहीं समझा। अली ने आना है, अली हमेशा ऊपर से नाजिल होता है, अली हमेशा ऊपर से नाजिल होता है। मौला सलामत ये विलायत की जवानी मौला सलामत रखे। अली वाले न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, हमेशा इसी तरह जवान रहते हैं। और खुदा की कसम अगर अली की विलायत अंदर हुई ना तो कब्र में भी फरिश्तों से पहले उठकर कहोगे या अली मदद। यकीन कामिल है जिसका यकीन है। सलेमान देख रहा है, अली जब भी आता है ऊपर से आता है। बस सलेमान देख रहा था, और जो देख रहा था और जिसे नजर आ रहा था बस उसी ने देखा। अली खैबर में नाजिल हुआ, अली के घोड़े ने खैबर पे कदम रखा। सलेमान ने अली को उतरते हुए देखा, दौड़कर खैमे में आए, कहा या रसूलल्लाह मुबारक हो, जिसका इंतजार था वो शाहकार आ गया। रसूल उठे, आप थक गए हैं, मैं अली की विलायत की मस्ती में परवाज कर रहा हूं। रसूल उठे, कहा सलेमान चल इस्तकबाल करे। चले अली को लेने के लिए, अली को लेने के लिए चले रसूल, अली को लेने के लिए चले रसूल। सलेमान साथ है। रसूल आए, घोड़े की लजाम में हाथ रखा, आवाज दी आए वलीउल्लाह, आए वलीउल्लाह। आने में देर हो गई? कहा नहीं हुई। कहा क्यों? कहा आपने कहा था नादे अलीयन, उसने कहा जल्दी कर। मैं तो चल पड़ा, देर नहीं हुई, पहुंच गया। उतरे, गले मिले, बोसा लिया, उस चेहरे का बोसा लिया जिस चेहरे को देखना इबादत है, जिसका चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह जाने उसका इस्म क्या होगा। लेकर चले आगे आगे रसूलुल्लाह, पीछे पीछे। आजकल मजलिसों का ट्रेंड बदल गया है, आप और तरीके से सुनते हैं। हम पुराने जमाने के लोग हैं, बुजुर्गों के शागिर्द हैं, हम ऐसे ही पढ़ा करते हैं। आप जैसे मर्जी सुने, और मैं उस तरह मजलिस पढ़ता हूँ जिस तरह इमाम जमाना के सामने पढ़नी चाहिए, क्योंकि मौला मौजूद है, हाजिर नाजिर है, मुझे देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। रसूल आगे चले, अली पीछे चले, सलेमान पीछे पीछे। अब खुश भी है, पहले मैंने बताया है, खुश भी है, पहले मैंने बताया है। आगे चलते चले अली एक कदम रुक गए। सेक्रेटरी साहब आप हैरान होंगे तो मैं भी हैरान हो जाऊंगा। एक कदम अली रुके, और रुक कर अब जुमला लाहौर सुनेगा, और मैं भी देखूंगा लाहौर का मयार क्या है। अली एक कदम रुके और रुक कर सलेमान के कान में कहा क्या मांगेगा? ना 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 ना, सुनना क्या मांगेगा? सलेमान कहते हैं अली आपको भी पता है? कहा सलेमान तुझे नहीं पता, मैं नफ्से रसूल हूँ, पहले मैं कहता हूँ फिर मोहम्मद कहता है।
उससे पहले कलाम करता है। क्या मांगेगा? कहा मालिक अब आपने जो इतनी बड़ी बात की है आप बता दो, या अली आप बता दो। अब मांगना था मोहम्मद से, मांगना था सलेमान ने, बताने वाला था अली। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं। कयाली आप बताओ क्या मांगू? दुआ करे सो क्या मांगू? फकीरों को भी कभी कभी सुन लिया करो। अली ने फरमाया सलेमान अगर रसूल से मांगना है तो फिर वैसा मांग जैसा मोहम्मद का मयार है। हाय हाय, बताने वाला अली है और मोहम्मद के मयार को अली से बढ़ के कौन समझेगा? मांगना है तो फिर वही मांग जो मयार है। मौला यही तो कह रहा हूँ, आप बताएं। का रसूल जब देने पर आए तो सलेमान मांगना कि या रसूलल्लाह वो मेराज की रात जो 18,000 बातें हुई थी सिर्फ उनमें से मुझे एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। खेमे में आए, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, खेमे में आए, आकर मसनतों पर बैठ गए। सामने रसूल है, साथ वो है जो होता ही साथ है, कभी इशारे भी समझा करो। साथ अली बैठे हैं, सामने सलेमान बैठे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेहरा देख के मुस्कुराता है, फिर देखता है मुस्कुराता है, फिर देखता है मुस्कुराता है। रसूल फरमाते सलेमान जो तेरे दिल में है मैं जानता हूँ, जो तेरे दिल में है मैं जानता हूँ। आप थक गए हैं, मैं करीब आ गया हूँ। जो तेरे दिल में है मैं जानता हूँ। क्या रसूल फिर वादा पूरा करे? क्या सलेमान मांग मांग जेड़े बंदे नु सुन दे हो, सिर चाहो तो जिक्र सुनो, मांग। सलेमान ने कहा मौला जो 18,000 आलमीन की बातें 18,000 मेराज के पर्दे वहदत में हुई थी उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। रसूल मुस्कुरा के कहते सलेमान तेरे सवाल को भी शाबाश, बताने वाले को भी शाबाश। हाय 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 हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। तेरे सवाल को भी शाबाश, बताने वाले को भी शाबाश। या रसूल आप बेहतर जानते हैं, मौला सलामत रखे, ये जवानियां बुजुर्गियां सलामत रखे। मौला एक बात, अब क्योंकि वादा किया था, रसूल दरवाजा इलाही है, रसूल अल्लाह का दरवाजा है, खाली लौटा नहीं सकते। हर बंदा अपनी पसंद के बंदे को सुनता है, खाली लौटा नहीं सकते। कहा ठीक है सलमान, तूने मांगा है मोहम्मद अता करेगा, उठ अपनी जगह से। उठे, वो सामने पहाड़ी पे चला जा, सामने पहाड़ी पे चला जा। मेरी पूरी मजलिस भूल जाना, इस बात को ना भूलना। सामने पहाड़ी पे चला जा, वहां एक पत्थर होगा, वहां एक पत्थर होगा, उस पत्थर को हटाना। वो इतना वजनी है तुझसे हटेगा नहीं, इसके इस्म से हटाना। हाय और इशारे नहीं सुनता तो कौन सुनेगा? इशारा है, इसके इस्म से हटाना। सलेमान चले, पहाड़ पे आए, सफेद पत्थर रखा हुआ था, पत्थर को हिलाया, हिला नहीं, हिला नहीं। फिर रसूल की बात याद आई, हाथ रख के कहा कैसे नहीं हिलता या अली? पत्थर हिल गया, अपनी जगह से हटा। जब पत्थर हटा, सलेमान ने देखा नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं, नीचे जमीन में सीढ़ियां उतर रही हैं, सीने उतर रहे हैं। डरा नहीं, अली वाला था। सीढ़ियां नीचे उतरता हुआ सीनों से नीचे आया। जब नीचे आया तो हैरान हो गया, 70,000 शहर थे, हर शहर में 70,000 मस्जिदें थी, हर मस्जिद में 70 मिंबर थे और हर मिंबर पे अली इब्न अबी तालिब, हर मिंबर पे अली बैठे। मौला इन हाथों को सलामत है। या अली पीछे वाला तुम्हारा भी अली से रिश्ता है। वो नारे की आवाज नहीं आई, लगाओ ताकि खून और पाक हो जाए। या अली हुक्म की तामील है, इसलिए मुकम्मल कर रहा हूं। हुक्म की तामील है। नीचे उतरे 70,000 शहर। मैंने कहा किताब का जिम्मेदार मैं, हवाले का जिम्मेदार मैं। आप अली की इश्क की मस्ती में प्रवास करो। 70,000 शहर, 70,000 मस्जिदें, 70,000 मिंबर, हर मस्जिद में, हर मिंबर पर अली, हर मिंबर पर अली। लाहौर वालों, मैंने बड़ा तुम्हारा जिक्र सुना है, आज तुम मुझसे भी जिक्र सुनो। सलेमान नीचे उतरे, देखा अली मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं,
खुतबा दे रहे हैं, अली अमीर कायनात लिसानुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। सलेमान कहते हैं जब मैंने देखा ना कि अली दुआ देनी है सैयदा ने, अली खुतबा दे रहे, ये कहते हैं मैं एक सतून के पीछे छुप गया कि बाहर तो बड़े खुतबे सुने हैं, आज जमीन के अंदर अली का खुतबा सुनो। ये कहते मैं सतून के पीछे छुप गया और अली का खुतबा सुनना शुरू किया। अली कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अली वल आला, हमद उस अल्लाह के लिए है जो अली वल आला है। वजअलनी अलीयुन फिज़ ज़ाते, अलीयुन फिल कमालाते, अलीयुन फिस सिफाते, अलीयुन फिल हयाते, अलीयुन फिल हरावाते। अली कहते हमद है उस अल्लाह की जो अली वल आला है, जिसने मुझे जात में भी अली बनाया, कमाल में भी अली बनाया, जात में भी अली बनाया, हयात में भी अली बनाया। या अली, आपके नारे से पता लग गया मुझे, मैं समझ गया, किसी को बताने की जरूरत नहीं, समझ गया, थक गए आप। अली ने कहा हमद है उस अली की जो आला है, वजअलनी अलियन फिज़ ज़ाते, जिसने मुझे जात में भी अली बनाया, फिज़ सिफ़ाते, सिफ़ात में भी अली बनाया, फिल कमालाते, कमालात में भी अली बनाया, फिल हयाते, हयात में भी अली बनाया। जो बेदार बैठे हो, नतीजा है मजलिस का, कमालात में भी अली बनाया। अब अली ने कहा यालमुल इंसान व यस्माउ सलेमान, इंसान जान ले और सतून के पीछे छुपा हुआ सलेमान भी सुन ले। हाय हाय हाय, ये अली को कौन पहचानेगा? जिसका हाथ नहीं उठता नहीं उठेगा। मौला आपको सलामत रखे। बस नतीजा यालमुल इंसान, इंसान जान ले, वह यस्माउ सलेमान, सतून के पीछे छुपा हुआ सलेमान भी सुन ले। अना ममदूर रहमाने व वसफल कुराने, मैं वो अली हूँ जिसकी मदह रहमान करता है, वसफ कुरान बयान करता है। सलेमान कहते जब मेरा नाम लिया मैं डर गया और डर के बाहर निकला, उस ढक्कन को बंद किया और दोबारा खैमे की तरफ दौड़ा, और दौड़कर जब खैमे में पहुंचा तो मोहम्मद के साथ अली बैठे थे। मोहम्मद ने कहा हाँ सलेमान, हाँ सलेमान, हाँ सलेमान, मैंने खुद ऐसे बताया है। हाँ सलेमान अली को देख रहा है, रसूल पूछ रहे हैं, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मेराज की बातों में से एक बात पूछी थी, आपने यही बताया है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने जहां भी देखा वहां अली नजर आया। कहीं यही तो मेराज की बात है, मैं मेराज पर गया, मैंने भी जहां देखा अली नजर आया। यही तो मेराज की बात है, मौला सलामत रखे। यही तो मेराज की बात है कि मैं भी मेराज में जहां गया मुझे अली नजर आया, मुझे अली नजर आया। अब एक जुमला है जो मैं नहीं कहूंगा तो शायद सफर नहीं कर सकूंगा। यही तो मेरी मेराज है सलेमान। थक गए हो? मैं जा नहीं रहा, अभी पढ़ रहा हूं। सलेमान यही तो मेरी मेराज की अहम बात है कि मैं जहां गया मुझे अली नजर आया, हत्ता के पर्दा वहदत में भी अली नजर आया। वक्त खत्म हो गया, नहीं तो बयान करता। रसूल को मेराज में हर जगह अली मिले, हर जगह अली मिले। बस वक्त बहुत हो गया, फिर इंशाअल्लाह चलो, मेरा इरादा था मगर बदल दिया। दुनिया अली को समझ जाती। अली की 4 साल की पोती को तमाचे न लगे। इसने रोना है, मैं रोने के लिए लफ्ज कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि इबादत मुकम्मल हो जाए, तकमील हो जाए। बहुत बड़े महरुल मसाइब, मसाइब कहाँ हैं? बहुत बड़ा मसाइब पढ़ने वाले हैं, सैयद हैं, मेरे बड़े हैं, उनके होते हुए, मगर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वो फहरिस्त में जाकिरों की जूतियों में कहीं मेरा नाम लिखा हो कि मैंने भी मसाइब पढ़ा था, और मसाइब मेरी जबान पे इस मासूमा का आ गया है तो इसी का सुन ले। अगर दुनिया अली को समझ जाती, आप क्या समझते हो? हमारी खातिर तमाचे लगे हैं? नहीं, अली की विलायत की खातिर लगे हैं, अली की पोती समझ के लगाए हैं तमाचे। और सैयद सज्जाद फरमाते करबला से लेकर शाम तक मेरी बहन सकीना को इतने तमाचे लगे, इतने तमाचे लगे, जो अज़ादार बैठे
ہو. اتنے تماچے لگے, یزید کے دربار میں رخساروں سے خون جاری تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے. یہ جو ہاتھ سینے اور سر پہ پڑ رہے ہیں, مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. اجرکم علی اللہ. یہ سکینہ معصومہ ہے. سید سے اجازت لے کر ایک روایت پڑھا ہوں, صرف جس کے دل میں قبر حسین ہے یہی روایت ساری رات رونے کے لیے کافی ہے. جب یہ لٹا ہوا سادات کا قافلہ, لٹا ہوا میں نے کہا ہے اور کسی نے ہائے نہیں کی, جو سید بیٹھے وہ ہائے کر دینا. لٹا ہوا قافلہ, ایسا لٹا ہوا قافلہ کہ جب شام پہنچا ہے تو ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے تھے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کون رونے والے بیٹھے ہو, کون عزادار بیٹھے ہو. ایسا لٹا ہوا قافلہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے تھے. جب شام کے بازار میں داخل ہوئے ہیں, میں مصائب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں مگر وقت نہیں ہے. جب داخل ہوا ہے قافلہ بازار شام میں, عزاداروں جو ماتمی بیٹھے ہو, اتنی بھیڑ بڑھ گئی, بازار کی اتنی بھیڑ بڑھ گئی. سید دعا کرنا مصائب کا جملہ ہے. بھیڑ بڑھ گئی, جب بھیڑ بڑھی تو اونٹ چل نہ سکے, جب اونٹ نہ چلے تو زمین پر بیٹھ گئے. اونٹ بھیڑ سے گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئے. وہ اونٹ جن پر علی کی بیٹیاں سوار تھی, وہ اونٹ جس پر حسین کی بیٹیاں سوار تھی. اجرکم علی اللہ. وہ اونٹ, میں اونٹ کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, علی کی بیٹیاں بغیر پلانوں کے اونٹوں پر سوار تھی. اونٹ زمین پر بیٹھ گئے, چلے نہیں. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, اگر یہ جملہ روایت کا نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. جب اونٹ نہیں چلے نا, اب اس بات پہ ہائے بیویوں نے کرنی ہے. جب اونٹ نہیں چلے, عمر ابن سعد تازیانہ لے کر آیا, اگلے اونٹ کے منہ پر اس نے تازیانہ مارنا شروع کیا. یہ شمر نے دیکھا, دوڑ کر آیا, عمر ابن سعد کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے, تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ جانوروں کے منہ پہ تازیانے نہ مارو, یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جس نے خاتم کرنا ہے. شمر کا یہ کہنا تھا. سکینہ دوڑ کر سجاد کے قریب آئی, کہ سجاد, شمر سے کہے میں بھی منہ سے قرآن پڑھتی ہوں. شمر سے کہے میں بھی منہ سے قرآن پڑھتی ہوں, مجھے منہ پر تماچے مارے, تازیانے نہ مارے. نہ مار سکینہ کو تماچے ہے ستمگر, نہ مار سکینہ کو تماچے ہے ستمگر. احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے. اشکبار آنکھوں سے دعا کیجئے, جتنے مومنین و مومنات جو حاجات لیے ہوئے ہیں, ولی العصر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی یہ عظیم الشان